السلام علیکم. جیسے کہ آج 29 جون ہے اور مرکزی صدر کے لیے آج ووٹنگ ہوگی، اس لیے مزید کارروائی کے لیے رانا غلام باز صاحب جنرل سیکرٹری صاحب آپ سے بتائیں گے. آپ کو رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام کمیونٹی کو ہم اپنی رپورٹنگ انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن ہم اپنی جو میٹنگ کی کارروائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے. تو سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں اپنے میاں ذکریہ صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے سعادت حاصل کریں گے. تو میں گزارش کروں گا جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی میاں ذکریہ صاحب، پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جناب میاں ذکریہ صاحب جو تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ابھی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے وائس چیئرمین جناب رانا عبدالجبار صاحب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب تو مصطفیٰ کے لیے چلی ہے باد صبا. ماشاءاللہ. اب تو مصطفیٰ کے لیے کھلے ہیں غنچے چمن میں حبیب کبریا کے لیے چلی ہے باد صبا. جزاک اللہ. کہ یہ ہمارا جو 2 سال کے لیے سیشن ہو رہا ہے نئے صدر کے انتخاب کے لیے، اس میں چودھری وقار احمد بڑائے صاحب کے مقابلے میں کسی نے صدارت کے لیے اپنا نام نامزد نے پیش نہیں کیا. تو آج تک کہ اس کے پاس ڈیٹ تھی کہ 29 تک کوئی بھی فرد اپنے آپ کو ایز اے مرکزی صدر کے لیے اپنا نام پیش کر سکتا تھا، لیکن تمام احباب نے چودھری وقار احمد بڑائے پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے کہ اگر ان کو عبوری صدر منتخب کیا گیا تھا تو آئندہ آنے والے 2 سالوں کے لیے بھی چودھری وقار احمد بڑائے صاحب کو پرماننٹ صدر جو ہے کیا جائے. چودھری وقار احمد بڑائے صاحب کو کہ جن پہ تمام اور مرکزی عہدیداران نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، قیادت جو ہے وہ مخلص اور نڈر ہونی چاہیے، اور پاسا کا ہر فرد مخلص اور نڈر ہے، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ساؤتھ افریقہ میں اپنا قیام کیے ہوئے ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے اللہ رب العزت کے لیے. ہم کسی سے کے ساتھ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور ان کے صدقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے. اور آنے والے وقتوں میں ہمارا کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بولے گا، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زیادہ تقریریں نہیں کریں گے، ہم آپ کو اپنا کام پیش کریں گے. اور کمیونٹی جو ہے وہ کام کے بیاہ پہ ہمیں سراہے، اور اگر ہم کام نہ کریں تو ہم سے پوچھے کیوں کہ ہم کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور الحمدللہ کے ممبران کی جو تعداد تھی یہاں میں بتاتا چلوں، 15 ممبران جو ہیں وہ جو ان کے نام اور ان کی عہدوں سے آپ تمام احباب کو اور اپنی کمیونٹی کو جو ہے مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ جناب اشفاق انور صاحب یہاں موجود ہیں. پلیز جس ممبر کا جو کھڑا کریں تاکہ کمیونٹی کو دیکھ لیں. اس کے بعد ہمارے مرکزی چیئرمین سپریم کونسل جناب ملک وسیم صاحب
यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद हमारे मर्कजी चेयरमैन चौधरी अब्दुल गफूर साहब वो यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद चेयरमैन कश्मीर कमेटी मियाँ जिक्रिया साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उसके बाद हमारे मर्कजी वाइस चेयरमैन जनाब राना अब्दुल जब्बार साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उसके बाद चौधरी वकार अहमद बुलाया जिनको पहले बुरी सदर थे यहाँ मौजूद है और आज से उनको परमानेंट सदर मुंतखब कर दिया गया है। उसके बाद हमारे मर्कजी सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद मनशा साहब यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद कैसर महमूद भट्टी साहब हमारे मर्कजी नायब सदर हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने ऑनलाइन जो अपना बयान भेज दिया है कि वो पासा की उसी मुखलिस टीम के साथ है जिसका सारा खिलास अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ, उनके प्यारे हबीब के नाम साथ और मरहूम खालिद भट्टी साहब की जो टीम थी उसके साथ है। उसके बाद एज ए मर्कजी जनरल सेक्रेटरी मैं राना गुलाम अब्बास यहाँ मौजूद हूँ। उसके बाद हमारे मर्कजी चीफ कोऑर्डिनेटर शहबाज खान महमूद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसके बाद हमारे मर्कजी फिनांस सेक्रेटरी राना जफर इकबाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसके बाद हमारे मर्कजी सेक्रेटरी कश्मीर कमेटी कामरान इम्तियाज साहब पाकिस्तान में है, ऑनलाइन वो बयान दे चुके हैं और वो हमारे साथ हैं। उसके बाद हमारे सदर जोहानिसबर्ग यूनिट लियाकत अली जट साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। उसके बाद सदर पीटर मैसबर्ग यूनिट जनाब आबिद हुसैन कश्मीरी साहब यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद अब्दुल जब्बार साहब कैम मकाम सदर नादरन टार जो है ऑनलाइन वो अपना बयान दे चुके हैं। उसके बाद मलिक सईद अनवर खोखर सदर कैप्टन यूनिट जहाँ खुद मौजूद हैं, ठीक है जी। और उसके बाद मलिक फैसल अवान साहब सदर वेस्टर्न केप यूनिट यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद आसम बाजर साहब सदर पोर्ट एलिज़ाबेथ यूनिट हैं और वो पाकिस्तान में और उन्होंने ऑनलाइन अपना मैसेज वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया है कि वो पासा की असल टीम के साथ है। उसके बाद चौधरी आतिफ नदीम साहब सदर फ्री स्टेट यूनिट है, उन्होंने अपना यहाँ अपने वोट के लिए यहाँ अपना एक नुमाइंदा भेज दिया है और वो उनकी जगह से कास्ट करेगा, हमारी इनसे बात हो चुकी है। और उसके बाद कायम मकाम सदर नॉर्थ वेस्ट यूनिट अब्दुल रऊफ साहब वो जनाब अपने लिए अपना नुमाइंदा यहाँ भेज चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो उनकी जगह पे उनका वोट कास्ट करेंगे, लेकिन वोट कास्ट की नौबत नहीं आई क्योंकि किसी भी दूसरे मौजूद मेंबर ने अपने नाम को एज ए सदर यहाँ पेश नहीं किया। तो इसलिए लेकिन ये है कि ये जितने भी इमरान हैं ये कह चुके थे कि पासा की मर्जी की आदत जो फैसला करेगी वो इस फैसले के साथ है। और मैं जैसा कि बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 20 मेंबरान हैं मरकजी शूरा और मरकज के और सूबाई सदूर समेत 20 मेंबरान यहाँ जो है उसमें से 16 अफराद यहाँ खुद मौजूद हैं और 4 अफराद 2 के नुमाइंदे मौजूद हैं और 2 के ऑनलाइन हमारे पास वीडियो मैसेज मौजूद है। और एक चीज और जो मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि इस आज की तकरीर में, आज की इस मीटिंग में ये तमाम के तमाम वो अफराद हैं जो खालिद भट्टी साहब की जिंदगी में उनकी मरकज और सूबाई ओहदों के इमरान थे। इनमें मलिक वसीम साहब हमारे नए चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल जो मुंतखब हुए हैं वो नए आए, बाकी पूरी की पूरी टीम पुरानी टीम है। कोई शख्स अगर ये चाहता है समझता है कि पासा जो है वो पासा किधर गए तो ये पासा के 20 अफराद में से 19 अफराद जो यहाँ मौजूद हैं ये पासा के वही खालिद भट्टी के वो पुराने साथी हैं जिन्होंने उनके साथ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अलम लिया था कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ काम करेंगे और अपनी बेहतरीन जो उनकी सलाहियतें हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए वो जो है नजर। इसके साथ मैं एक चीज और बताता जाऊं कि जो मलिक वसीम साहब हैं वो नए इस ओहदे पे आए हैं, वो नए पासा में नहीं है। जब पासा शुरू की गई थी तो पासा के मोअज़्ज़िज़ीन में मलिक वसीम साहब मौजूद थे, लेकिन चंद ऐसे अफराद की वजह से जो सिर्फ अपने जाती मुफादात की वजह से पासा में आए थे उनसे उनकी वजह से वो पीछे हटे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो सारी जो पासा को चमकी हुई थी पीछे हट गई हैं तो वो फिर उन्होंने समझा कि अभी खालिद वही जमात खालिद भट्टी साहब के पीछे बच गई है तो मैं उस जमात के साथ इंशाअल्लाह ताला दामे दरमे सुखने हर तरह से चलने के लिए राणा साहब सदर साहब राणा साहब
जनाब थैंक यू ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅੱਜ पे भाई साहब दो बंदे सोने खान साहब एक दी नजर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कश्मीर साहब नब्बे को जी जैसा कि अभी नए सदर 2 साल के लिए मुंतखब हो चुके हैं तो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन में से कुछ दोस्त अपने जज्बात का इज़हार करना चाहते हैं, अपने लफ्ज़ों में खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं या उन्हें कोई एडवाइस करना चाहते हैं आने वाले वक्तों के लिए। तो मैं मुअज़्ज़िज़ीन से पूछना चाहता हूँ कि कौन कोई मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आप मलक फैसल अवान साहब हमारे वेस्टर्न केप के सदर हैं जनाब, वो अपने जज्बात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे मजहबी भाई खैरियत से होंगे। जी मुझे बहुत खुशी है कि मेरा प्यारा भाई वकार अहमद बड़ैच हमारा सदर है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत एक अच्छा इंसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा 2 साल के लिए ये हमारे सर पे सफ़क़त का हाथ रखेंगे और इंशाअल्लाह हम उनके भी हिस्सा रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपने नेक्स्ट मेंबर जो हैं अपने मलिक वसीम साहब जो है हमारे सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन है मरकज़ की, तो वो अपने ख्यालात और जज्बात का इज़हार करेंगे और पासा के लिए जो वो अपने जज्बात लेकर दोबारा नए सिरे से टीम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे साथ पासा के लिए जज्बात जो पहले दिन से थे आज भी वही हैं माशाल्लाह। दुख हुआ कि कुछ दोस्त जिन्होंने अपनी पर्सनल ईगो में आके इसको टुकड़े करने की कोशिश की, और मैं जो पहले 1.5 साल से पासा छोड़ चुका था, तो भट्टी साहब के इस ख्वाब को देखते हुए कि जिस चीज़ के लिए हमने सड़कों पे रैलियां की हैं, एम्बेसियों के बाहर जाके पोस्टर उठाए हैं, सारा कुछ किया है, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट की गई दूसरी साइड वालों को भी। अब उनको मैं दूसरी साइड कह रहा हूँ क्योंकि अब उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। उसकी वजह है कि उनसे बोला गया कि ये किसी वन मैन शो पार्टी तो है नहीं, ये पब्लिक एंटिटी है, फलाह का काम है और सबकी ये इसमें जिम्मेदारी है। इसमें कोई वन मैन बंदा हो नहीं सकता कि जो क्लेम कर दे कि पासा मैं हूँ या मेरी पासा है। एक टीम वर्क होता है जो हमने इसको पहले किया था। मैं इस चीज़ में हैरान हूँ कि इसका क्या तमाशा बनाया गया कुछ कार्टून और कुछ शर पसंदों ने। वो बिल्कुल इतनी घटिया हरकत थी कि जिसके ऊपर मुझे शर्म आती है कि वो अपने आप को एक आप बोलें कि कम्युनिटी का वर्कर बोलते हैं। मुझे ये भी पता है कि उन्होंने हमारे साथ मिलके भी काम किया है, तंजीम के लिए भी किया है, उनकी बहुत सारी कुछ खिदमात हैं जिनको मैं आज भी सराहता हूँ, लेकिन ये जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया बिल्कुल गलत था। इसके लिए उनको 10 मीटिंगें बैठ के तमीज़ से एक दूसरे से बात करके चीज़ें सेटल करते तो बेटर था। लेकिन अब इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है कि मेजॉरिटी जिस साइड पे है मेरा वोट उधर है। और मैं चौधरी वकार साहब की पहली जब ये न्यू कासल के सदर बने थे मैं वहाँ पे भी गया था, तो ही इज़ ए जेंटलमैन और ये डिज़र्व भी करते हैं। तो इंशाल्लाह आई थिंक कि ही विल प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग। अब मैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जनाब मियां मोहम्मद ज़िक्रिया साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब उठे और पासा के बारे में नए सदर को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक और बाब कंप्लीट कर लिया है। जो गैप चंद महीने पहले हमारी कम्युनिटी में आया था और ख़ासकर पासा में आया था जब भट्टी साहब के विसाल के बाद, तो आज जब मोहतरम अपने वकार भाई सदर मुंतखब हो गए हैं तो ये बाब और ये मेरे ख्याल में गैप इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। उसकी वजह आप लोग सब जानते हैं और उनकी एक खिदमात जो हैं न्यू कासल में और पासा नादर नटाल के लिए वो हमसे ढकी छुपी नहीं है। और पासा ओवरऑल भी, बल्कि उन्होंने सिर्फ नार्दर्न नटाल के लिए नहीं, जब सैलाब आए तो डरबन तक मददें की, जब पासा जनरल स्टोर के नाम से काम करने की बारी आई तो उन्होंने पाकिस्तान तक सारे काम किए। इसी तरह
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسا ابھی جو انہوں نے پاسا کے لیے 3 فلیٹ وہاں پہ مختص کروائے ہیں پاسا کے جو یہاں پہ فوت شدگان ہیں ان کی فیملی کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ انہوں نے اپنے ناردرن نٹال کے اندر ناردرن نٹال صوبے کے صدر کی حیثیت سے یہ سارے کام کیے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ انشاءاللہ یعنی جب اب وہ ہمارے مرکزی صدر ہیں تو انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر وہ ہمارا کام کریں گے۔ جو بھٹی صاحب کا خواب تھا ہم انشاءاللہ اس کو پورا ان کی قیادت میں انشاءاللہ کریں گے۔ جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ پاسا کی مشہور و معروف شخصیت ہے، جوبک میں نہیں پورے ساؤتھ افریقہ میں جانے مانے ہیں۔ جوبک یونٹ، جوبک کے گرد و نواح اور مضافات تک کے صدر ہیں وہ۔ میں اپنے محترم صدر جناب لیاقت علی جٹ صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کریں اور پاسا کے لیے اپنے الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے دوستو، اللہ کا شکر ہوا آج ہم نے اپنے قیمتی ووٹ دے کر اپنا نیا صدر منتخب کر لیا۔ اس کے لیے ایسا ہم نے صدر چن لیا ہے کہ جو اس پاسوں کو ضرورت تھی۔ بھٹی صاحب جانے کے بعد ہم نے 1 سال ہو گیا ہم کو، ہم آگے پیچھے ہو رہے تھے، ڈگمگا رہے تھے، لیکن الحمدللہ آج ہم وہ باب مکمل کر لیا ہم نے۔ اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سنسا کو ریکویسٹ کریں گے کہ آگے جو ہمارے کام ہیں وہ ایسے ہوں کہ میری یہ خواہش ہے، شروع سے رہی ہے، جب میں صدر نہیں بھی تو اس وقت بھی آج بھی، کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو کام ہے ہمارے ساؤتھ افریقہ کی کمیونٹی اس کے لیے کیا جائے، یہ ریکویسٹ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ ایک بات کو لے کے ابھی نہیں چلنا کہ صدر صاحب منتخب ہو گئے ہیں، ہمیں اب کام پہ توجہ دینی ہے۔ کون کیا کام کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، کسی کو ٹیز نہیں کرنا، جتنا بھی کوئی کام کرے اپریشیٹ کرنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے وہ زیادہ ہے۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، ایک ٹیم نہیں بنیں گے، ہماری یونٹی نہیں ہوگی تو میرے بھائی ہمارا مقابلہ بہت سخت ہے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے چودھری کھڑے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، اپنے آپ سمجھتے ہیں جو، لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی، ہم مل کر کام کریں گے اور صدر صاحب کے زیر سایہ رہتے ہوئے جو جوہانسبرگ یونٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ صدر صاحب کے ساتھ پورے یونٹ کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ کسی کو کوئی ضرورت ہو جوہانسبرگ میں تو لیاقت جٹ اور لیاقت جٹ کے پورا یونٹ، پوری ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ دن رات 24 اویلیبل ہے۔ شکریہ۔ محمد بھٹی صاحب نے جب یہ پاسا شروع کی تھی تو اس وقت جو ہیرے چنے گئے تھے پاسا کے لیے، ان میں سے ایک انمول ہیرا ہمارے کیپ ٹاؤن یونٹ سے ہمارے وائس چیئرمین ہیں رانا عبدالجبار صاحب۔ اب میں ان کو دعوت سخن دوں گا۔ رانا عبدالجبار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ تمام دوستوں نے یہاں آج کی میٹنگ میں حاضر ہو کر جناب چودھری وقار احمد وڑائچ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو آئندہ 2 سال کے لیے مرکزی صدر منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چودھری وقار احمد وڑائچ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے 2 سال جو ہیں انشاءاللہ پاسا دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ جب جناب خالدات بھٹی صاحب نے پاسا کا سٹارٹ کیا تو مجھ ناچیز کو بھی رابطہ کیا گیا اور میں پہلی میٹنگ میں حاضر ہوا جب پاسا کا نام رکھا گیا۔ تو اس میٹنگ میں پہلی دفعہ وقار احمد وڑائچ صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اتنے سالوں میں ہمارا جو میڈیا کا سسٹم ہے اس کے ذریعے پتہ چلا کہ وقار احمد صاحب کیا کام کر رہے ہیں اپنے صوبے میں، آپ صدر ہونے کی حیثیت سے اور بحیثیت پاکستانی کہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا کتنا جذبہ ہے۔ تو مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جو سال ہے اس میں ہماری پاسا اللہ کے فضل و کرم سے جو بھٹی صاحب نے خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اور میں تمام دوستوں کو دوبارہ سے اور خصوصی طور پہ وقار احمد وڑائچ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے صدر منتخب ہونے پر، اور ہم سب کو ان پر بہت ناز ہے اور ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاسا کا فخر، پاسا کو
ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਸਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, कम्युनिटी की खिदमत करने वाले, और आप लोगों ने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि कम्युनिटी के लिए किसी भी अंदाज में, किसी भी तरह मैं अपनी जो खिदमत हैं वो सर अंजाम देता रहूँ। भट्टी साहब के विसाल के बाद यूँ महसूस हुआ था कि जैसे शायद हम बिखर चुके हैं, बल्कि बाज़ औक़ात मैं इतना डिसहार्ट हो जाता था कि मैं कहता था कि ये क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी जब काम करते हैं तो हमें अप्रिशिएट करने की बजाय उस पर हमें तनकीद का सामना करना पड़ता है। और वो जो शब रोज़ जो गुज़रे, वो आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो एक डरावना ख्वाब था जो गुजर गया। मुझे खुशी हुई उस दिन जिस दिन पूरी टीम ने बैठ के एक फैसला किया, और वो फैसला सबके दिल की आवाज़ थी। और कि मैं अपने होनहार काबल दोस्त हमारे केप टाउन के सदर, जो कि कोई अननोन शख्स नहीं है, जानी पर पहचानी शख्सियत है, आप उनको यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, फेसबुक पे देखते रहते हैं कि वो कम्युनिटी को हमेशा उनके मसाइल पे बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, और ना सिर्फ उस पर बात करते हैं, हर उस मसले को कि जिसको गंभीर मसला भी कहा जा सकता है और नाजुक मसला भी, कि जिसको लोग, जिस पे गुफ्तगू करते हो, लबशाई करते हो, लोग झिझकते हैं, हमारे सईद खोखर साहब बेबाकी से उस पर बात कर देते हैं। तो आज अपने उस बेबाक सदर केप टाउन को मैं दावत दूंगा कि वो यहाँ भी अपनी कबीना के सामने भी नए सदर के इंतखाब के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहले शुक्रिया अदा करांगा जनाब खालिद भट्टी साहब का कि जिन्होंने मैंने इस काबिल समझा। जो पासा की सदारत मैनू देने की कोशिश की गई, मलिक फैसल अवान साहब ने कहा तेनों कैप्टन का सदर बनाना है, मैं कहा नहीं सॉरी यार मैं इस चक्कर नहीं पैना है। फैसल साहब ने दोबारा फोर्स किया, ने कहा तेनों ही सदर बनाना है। असी मीटिंग च गए, राजबार साहब होते सन, खालिद भट्टी साहब ने कहा हाँ जी, मैं कहा भट्टी साहब मैं एक कारकुन, एक वर्कर, अच्छा वर्क कर सकना वा। कहने नहीं सदर असा तेनों कैप्टन का तेनों ही बनाना है। तो मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकना वा, मेरे को होर कोई लफज नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसा काम किया कि मैं आज कोई अपने आप अपना कर सका कि मैं बहुत अच्छा काम किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही गल कहांगा, खालिद भट्टी साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसां मेरे ते इतमाद का इजहार किया है। और मैं ये चाहांगा अपने नवे सदर कोलों कि ये सानू इस तरह पंप करन जिस तरह भट्टी साहब काम करवाते सन, सदर साहब को भी यही उम्मीद रखने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बारी है उस शख्स की जो किसी तारफ का मोहताज नहीं। खालिद भट्टी साहब की ज़िंदगी में भी उनका दस्ते रास्त बन के रहे। हर काम में जो भी काम एक अहम काम की सूरत में होता था, खालिद भट्टी साहब ने उन पर अपने इत्मीनाद का इजहार किया हमेशा। वो मरहूमिन के लिए फ़ंड की सूरत में था तब भी,
वो ज़लज़ला ज़दगान की सूरत में था तब भी किसी भी तरह के किसी भी मामले को अगर कोई एक ऐसी कोई स्कीम शुरू की गई तो उसके लिए जिस पे सबसे ज़्यादा बोझ डाला गया या इत्मीनान का इज़हार किया गया वो हमारे वाइस सदर जनाब चौधरी मनशा साहब थे। और चौधरी मनशा साहब ने जो ड्यूटी उनको दी गई उन्होंने उसको इस तरह किया जिस तरह की इबादत करते हैं और हमेशा से, और उन्होंने उनके किए गए कामों ने हमें सरबुलंद रखा। कभी किसी भी मौके पे अगर ऑडिट की बात हुई तो उन्होंने पासा को लेट डाउन नहीं होने दिया, उनके पास हमेशा पूरा वर्क रहा है। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि कुछ गैर मुतल्लिक़ा अफराद को उन्होंने अगर जवाब देने के काबिल नहीं समझा तो वो एक अलग उनका अपना एक फ़ैसला था। अदरवाइज़ हमेशा मरकज़ी क़यादत को, मरकज़ी यूनिट को, टीमों को उन्होंने रिटर्न सूरत में प्रॉपर तरीके से जवाब दिए। और अभी भी कोई भाई होके और एक नेक नीति से पूछता तो वो उसको जवाब देते, लेकिन कीचड़ उछालने की सूरत में फिर ये उनकी स्वाब दी थी कि वो ऐसे लोगों को जवाब के काबिल समझते हैं कि नहीं। तो मैं दावत सुखन दूंगा हमारे लवली वाइस सदर जनाब चौधरी मनशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे लिए एक फ़ख्र का दिन है और मैं ये समझता हूँ कि जो हमने 3-4 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था भट्टी साहब के साथ, जो पास्ता की हमने बुनियाद डाली थी, वो हमने 3 साल भट्टी साहब की हयात तक उसको अच्छे तरीके से उसको चलाया। और यकीन करें कि हमारा पास्ता का हर मेंबर एक मेहनत से काम करते थे और उसी मेहनत का नतीजा है कि पास्ता आज पूरे साउथ अफ्रीका में मकबूल है। तो इसमें थोड़ा सा गैप आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हमारे नए मुंतखब सदर चौधरी वकार वड़ाई साहब जो नए सदर मुंतखब हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे साथ मिल के और हमारी ये रहनुमाई करेंगे और हम पासों को इंशाअल्लाह ताला इसे आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक हमारा तल्लक है परी साहब की ज़िंदगी में भी वो एक ही काम बताते थे, वो एक ही काम कहते थे कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी काम करो, उसमें इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। तो आप देख लें हमारे जितने पम्फलेट लगा हुआ है, इसमें भी जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं उसका एक ही मकसद था कि हम इंसानियत की खिदमत करें। तो वो उन्हीं का वो इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेके हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी काम करते रहेंगे। और आज एक दफ़ा फिर हम अपने चौधरी वकार वड़ाई साहब को अपने सदर होने पर मुबारकबाद देते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला इसकी रहनुमाई में इससे ज़्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह। रही थी तो मुझे खालिदाद भट्टी साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कुछ पिछली एसोसिएशन से कुछ अफराद जो कि सीनियर हज़रात में शामिल हैं और काम करने पे यकीन रखते हैं, वो पासा में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, वो पासा में आ रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। मैंने नाम जाने बगैर खैर मुबारक कहा और मैंने इस खुशी का इजहार किया कि अगर वो साथी जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी पहले से तजर्बा रखते हैं और जज्बा भी रखते हैं, अगर ऐसे दोस्त हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े वक्त में पासा इंशाअल्लाह ताला अपनी कम्युनिटी में अपना नाम, अपना मकाम बनाने में कामयाब हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस टीम जब वो टीम चुनी गई तो उस वक्त जनाब हमारे आज के चेयरमैन चौधरी अब्दुल गफूर साहब और सीनियर नायब सदर जो हैं चौधरी मोहम्मद मनशा साहब और मौजूद थे और वो हमारे साथ आए और उनके तजर्बात से हमने जो फ़ायदा उठाया वो पासा की नेक नामी की सूरत में हमारे तो मैं अपने चेयरमैन जनाब चौधरी अब्दुल गफूर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने जज्बात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। जी पहले नंबर पे मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी वकार साहब को नया सदर बनने पे। हमारा जो भट्टी साहब का मिशन था जब हमने ये पासा शुरू की थी, तो मिशन ये था कि हम लोकल कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है उसकी मदद करेंगे। उनके वसाल के बाद कुछ थोड़ा गैप आया था, जब पासा में थोड़ी एक अफसाई थी, लोगों ने अपनी चुतराहट का कायम करने की कोशिश की थी पासा में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ये पासा यहाँ पे मौजूद हैं, ये मेंबर, हमारा चुतराहट पे कोई यकीन नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो वकार साहब जो मिशन भट्टी साहब लेकर चले थे उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और उसके अलावा अब जो गैप था भट्टी साहब के वसाल के बाद, और या जो हमारा एक्स प्रेसिडेंट हैं शमरेज साहब, उनके जाने के बाद हमारा काम नहीं रुका।
हमने काम किया है। हमने स्कूलों में वाटर टैंक्स दिए हैं, प्रोजेक्टर दिए हैं, सीमेंट दिया है, और जो भी किसी भी स्कूल को ज़रूरत थी, जहाँ तक हमारी रसाई थी, हमने किया वो काम। तो मुझे उम्मीद है कि चोई वकार साहब इंशाअल्लाह पासा को आप नेकनामी का सबब बनेंगे, और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी के लिए ये बाइस फ़ख्र होंगे इंशाअल्लाह, और पासा को बल्दियों तक कबल इसके कि मैं अपने नए मुंतखब सदर साहब को दावत सुखन दूँ, मैं अपने तमाम अहबाब का जो यहाँ मौजूद है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी ये कबीना, ये वो गिने चुने लोग हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी का वसी तजर्बा रखते हैं, डिलीवर करने का तजर्बा रखते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मजहबी जमातों से इनका ताल्लुक रहा है, और इन लोगों ने हर प्लेटफार्म पे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जैसा कि अगर मैं जिक्र करूँ, हमारे सरपरस्त आला जनाब अशफाक अनवर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पुराने सियासतदान हैं, डिलीवर करने का हुनर जानते हैं, टीमों को लेकर चलने का हुनर जानते हैं, एक साथ रहने का हुनर जानते हैं, और इन जैसे दोस्तों की मौजूदगी में पासा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ आगे ही बढ़ेगी। और उसके साथ हमारे चौधरी अब्दुल गफूर साहब चेयरमैन हैं, सीनियर नायब सदर जनाब चौधरी मंशा साहब हैं, हमारे वाइस चेयरमैन जनाब राना अब्दुल जब्बार साहब हैं, हमारे चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मलक वसीम साहब हैं, मलक फैसल अवान साहब हैं, फिनांस सेक्रेटरी हमारे प्रोफेसर जनाब राना जफर इकबाल साहब हैं, लियाकत अली जट साहब हैं, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर, और हमारे पासा के जो नेक नामी में इजाफा करने में और उनकी खबरों को जो है अवाम तक पहुंचाने में जो दिन रात एक किए हुए हैं, हमारे खानजादा साहब, मैं कहता हूँ एक दफा के लिए उसके साथ ही जनाब आबिद हुसैन कश्मीरी साहब के ये कम्युनिटी का वो रोशन चेहरा है कि जहाँ भी कम्युनिटी को कहीं भी मसला दरपेश आया है तो इन्होंने बिल्कुल एक जुर्रतमंद और गैरतमंद शख्स की तरह अपनी कम्युनिटी के लिए सीना सफर हुए हैं, जिसके लिए पिछले माह कातलाना हमला हो चुका है। वो इस बात की दलील है कि वो कम्युनिटी को सर्व कर रहे थे और किसी की आंख का कांटा थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कामों की वजह से, उन्होंने जो कम्युनिटी में खिदमत की, उन्होंने जो चैरिटी की, जो यतीमों मस्कीनों का के साथ जो उन्होंने तावन किया, क्योंकि वहाँ पीटर मैसबर्ग से मैं भी तलक रखता हूँ, और एज ए मर्कजी जनरल सेक्रेटरी मैं जानता हूँ कि कहाँ का मैंने उनको इस्तेमाल किया, और कहाँ कहाँ जब मैंने उनको किसी बात के लिए वादा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बात दोबारा नहीं कहनी पड़ी, बल्कि मुझे पूरी इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैं पहले बात का को सोचती तो नहीं, सादा सी बात की है, और सादा सी बात का बेहतरीन जवाब काम होने की सूरत में मुझे मिला है। तो ये सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नए सदर साहब को मुयस्सर है। अब सदर साहब भी कोई नए बच्चे नहीं है, माशाल्लाह ये वो फर्द हैं जो तंजीम में बनने से पहले माशाल्लाह कम्युनिटी या कि लोकल कम्युनिटी को सर्व करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने किसी भी तंजीम से पहले सर्व करके ये बताया कि वो खिदमत खलक की वजह से है, ना कि तंजीमों में अपना नाम बनाने की वजह से, क्योंकि उस वक्त तो तंजीमें बनी भी नहीं थी जब चौधरी साहब ने अपने इलाके में लोगों को डिलीवर किया। तो इसलिए उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस सूरत दिया कि साउथ अफ्रीका में बसने वाली इतनी बड़ी कम्युनिटी का की सदारत का शरफ उन्हें बख्शा है, और मैं उम्मीद रखता हूँ उनसे कि वो इस शरफ को अल्लाह तबारक व तआला का इनाम समझते हुए, इस इनाम के शुक्रिया के तौर पर अपने जो जज्बात है, अपनी जो खिदमात है, अपनी जो तफीकात है, उनको मजीद बुरुएकार लाते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को ना सिर्फ सर्व करेंगे, बल्कि यहाँ की साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी की भी खिदमत में किसी तरह से कोई हीरो जैसे काम नहीं लेंगे, बल्कि अपने भरपूर अपने साथियों से, अपनी टीम के भरपूर जो नुमाया लोग हैं, जो जानते हैं कि काम को कैसे किया जाता है, उनके साथ मिलकर बेहतरीन डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं दावत देता हूँ नए सदर मुंतखब सदर जनाब चौधरी वकार अहमद वलाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सब प्यारे भाइयों का बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी, और एक अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे कोलीग मुझे हीरे की तरह दिए हैं,
جن کی میں جتنی بھی تعریف کروں میرے پاس الفاظ نہیں، جن کی میں جتنی بھی عزت کروں قدر کروں میں اس قابل نہیں. اور میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اس پاسا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو امید ہے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو مل کر پھر ایک ٹیبل پہ لائے اور مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک فلاحی تنظیم ہے، اس میں ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، چاہے کوئی ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے اور چاہے کوئی ہمارے ساتھ ہے. ہم ہر کسی کے لیے پھر بھی دعا گو ہیں. اور جیسا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ پاک مجھے اس اسٹیج پر لائے گا جہاں آج میں پہنچوں، اور میرے بھائیوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. لیکن اس میں اپنے بھائیوں کو یہ بھی کروں گا، ایز اے لیڈر ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم سب کو مل کے ایز اے ٹیم یہ کام کرنا ہے. اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلافات ہیں بھی، لیکن وہ ایسوسیشن کی سٹیج پہ پلیز ان کو ذرا دور رکھ کے اور اکٹھے ہو کے یکجہتی سے اس پاسا کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. کسی چھوٹے چھوٹے مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا، اپنی انا نہیں سمجھنی، اور سمجھ بوجھ اور مفاہمت سے کام کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، کسی کو نیچا نہیں دکھانا. تو ایک دوسرے کو اپنے سے بڑھ کے عزت دینی ہے. اسی کا نام کمیونٹی ہے اور اسی کا نام ایسوسیشن ہے. اور اللہ پاک امید ہے کہ میرے سب ساتھیوں کو میرے اس میسج کا اثر ہوگا اور میری اس بات پہ وہ عمل کریں گے کہ ہم سب ایک ٹیم ہیں، ہم بھائی ہیں، اور ہم کسی بھی چھوٹے مسئلے کو، کسی بھی چھوٹی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے، اور ہم برداشت سے کام لیں گے اور مل کر پاسا کو لے کر آگے چلیں گے. ماشاء اللہ. اور میں پھر اپنے بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی اور آخر میں خدا حافظ رہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاسا پائندہ باد.